surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that राजनाथ सिंह जी said. मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। हमारे पायलट्स को टारगेट किया, हमारे फाइटर जेट्स को टारगेट किया, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 दिन तक हमारे विमान उड़ान नहीं भर पाते। और यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने, और इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में दिया। आखिर डोनाल्ड ट्रंप 29 बार यह कैसे कह रहा है कि जंग मैंने रुकवाई? इन द मॉर्निंग। और उसके बाद उन्होंने कहा, ही सेड ऑपरेशन सिंदूर lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that राजनाथ सिंह जी said of operation. मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। So let us now move to Operation Sindoor. Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right?
And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? मादे हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज, नतीजा सारों को मालूम है. अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि सवाल, जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों. वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर सवाल, जरूरी सवाल है गिरे क्यों. और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical. मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे. 50% होगा तो बोल देंगे. सॉरी सर, एक साइड से सर्विस फ्लीट आ रही है, बोल रही है सर, मजा आ रहा है. ऐसा नहीं अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर. आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं. समय आपका कम है. अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल. कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं. मैन is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. He is breaking, Mr. Trump is breaking all protocol and he is inviting the man. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदन, let me say what Donald Trump has to say. सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो. सॉरी सर, गलती हो गई. ये कई काम से. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan to do the whole operation and lunch with the president.
After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, 1 second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, मज़ीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे. 4 घंटे नहीं, भारत ने सिर्फ 30 मिनट में सरेंडर किया. राहुल गांधी ने असेंबली में खड़े होकर मोदी को नंगा कर दिया. आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कहता है. शाम को नरेंद्र मोदी जब संसद में भाषण दे रहे थे तो मोदी के अपने सांसद सो रहे थे या श्रवण कर रहे थे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था. शायद ये लोग भी मोदी का पुराना घिसा हुआ रिपीट टेलीकास्ट सुनकर बोर हो गए थे. दोस्तों, इन सब के बीच एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है. जहां मोदी के भाषण के दौरान कुछ लोग सो रहे थे, वहां गडकरी क्या कर रहे थे? क्या गौर किया आपने कि भाजपा और गैर भाजपा के सारे छर्रे तमंचों ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी गान किया, लेकिन संसद में मोदी की सीट शेयर करने वाले अगली लाइन में बैठने वाले नितिन गडकरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी चालीसा नहीं पढ़ी. गौर नहीं किया तो मैं बता देती हूं कि क्यों गडकरी ने मोदी को भाव नहीं दिया. हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं. तो चलिए वीडियो की शुरुआत राहुल गांधी से कर लेते हैं. दोस्तों, बिल्कुल सच कह रही हूं, राहुल गांधी के एक सवाल ने संसद में मोदी को पानी पिला दिया. हुआ दरअसल ये कि मोदी की स्पीच के बाद में राहुल गांधी ने कह दिया कि सर अब तो कह दीजिए कि ट्रंप ने झूठ बोला है. वैसे ही मोदी जी मार हड़बड़ा गए और पानी का गिलास उठा लिए और पानी पीने लगे और पीछे बैठे मंत्री माथा पीटने लगे. वैसे तो ऐसा फिल्मों में होता है कि बड़े मालिक के खौफ से लोगों का गला सूख जाया करता है, लेकिन संसद के इस सीन को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया और सोचता रहा कि क्या ट्रंप ने सच में इतना खौफ बना रखा है कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा. और आप फिर ऐसे कैसे प्लीज राहुल गांधी के
सवाल के बाद मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना यह कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। मोदी ने ना तो ट्रंप का नाम लिया, ना ही वो ये कह पाए कि वॉर रुकवाने वाली बात जो ट्रंप कर रहे हैं वो सरासर झूठ है। राहुल गांधी के सवाल पर मोदी डिस्टर्ब हुए। नेहरू काल में उन्होंने शरण ले ली और इतना नेहरू 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 किया कि 2-4 बार और नेहरू का नाम ले लेते तो शायद नेहरू को मोदी जी को दर्शन देने पड़ जाते। नेहरू 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 जी। जिन राहुल गांधी को मोदी शाह समेत पूरी भाजपा विदेशी कहती है, सोनिया गांधी को विदेशी कहने की कोशिश करती है, वो राहुल गांधी विदेशी ट्रंप की मजम्मत कर रहे हैं, वो विदेशी ट्रंप को ललकार रहे हैं। लेकिन जो मोदी, शाह और भाजपा खुद को 100% राष्ट्रवादी बताते हैं, वो विदेशी ट्रंप को एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप युद्ध रुकवाने वाली बात झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जी, जिनके मुंह से अपने राष्ट्र के अपमान पर थूक नहीं निकल रहा है? ट्रंप को झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति तक नहीं कह पा रहे हैं। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सोचने की जरूरत है दोस्तों। राष्ट्रवादी लोग ट्रंप के पल्लू में छिप रहे हैं और जिनको ये राष्ट्रवादी विदेशी बताते हैं, वो राहुल गांधी देश के लिए ट्रंप की दाढ़ी तक नोच लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों से बहिष्कार करवा दिया, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बगल में बिठाकर धन्यवाद देता है। ट्रंप मुनीर को बगल में बिठाकर बिरयानी खिला रहे थे। ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बिरयानी खिला रहे हैं, लेकिन मोदी और मोदी सरकार के मुंह से थूक तक नहीं निकलता। अब बात करेंगे नितिन गडकरी की। दोस्तों, संसद का कल का ये सीन देखिए। नरेंद्र मोदी के गिरे हुए कागज उठाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी का यू बनी जा रही थी। बाकी सांसद एक बार मोदी जी से हाथ मिलाकर धन्य हो जाना चाहते हैं, कुछ मोदी जी की शान में मार झुके जा रहे हैं, लेकिन संसद में मोदी की ही सीट शेयर करने वाले गडकरी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा। न मोदी को खुश करने की कोई चाहत दिख रही है, न मोदी के आगे बिछ जाने की कोई लालसा। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि होंगे मोदी अपने घर के, हमें क्या। ये बात सच है कि पिछले कुछ समय से भाजपा के भीतर एक ही नेता है जिसके भीतर रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, और वो है नितिन गडकरी। आप मोदी के संसद में आगमन का ये वीडियो देखिए। जब मोदी संसद में आ रहे थे, तमाम सांसद उनको लेवाने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। छोटे मोटे नेता नहीं, राजनीति को जिंदगी समर्पित कर चुके सांसद तक भी मोदी के आगे लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन गडकरी ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि गडकरी के भीतर राजनीति में शीर्ष पदों पर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मोदी की शरण वंदना से न जाने उनको कैसा परहेज है। मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, नितिन गडकरी के भाषण सरकार के लिए और भी तीखे होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और समझिए कि जब सदन में नरेंद्र मोदी के पीछे पूरी भाजपा खड़ी थी, ताली बजा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, तब भी गडकरी के चेहरे पर कोई भाव था ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में खड़े होकर कई सांसदों ने मोदी 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 किया। यहां तक कि एनडीए के गैर भाजपा सांसदों ने भी मोदी गान शुरू कर दिया, लेकिन गडकरी ने इस मुद्दे पर बोलना भी जरूरी नहीं समझा। मोदी की तारीफ तो बहुत दूर की बात है। विपक्ष जब जब सदन में मोदी को घेरता है तो गडकरी कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं इसलिए मोदी के आगे नहीं झुकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रह चुके हैं और अमित शाह भी रह चुके हैं। भाजपा के भीतर बहुत बड़ी हलचल है जो कभी भी सुनामी का रूप लेकर सतह पर आने वाली है। इंतजार कीजिए। राहुल गांधी भाजपा पर जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पूरा भाषण बस एक भाव पर केंद्रित था। इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, डरपोक है और अपनी छवि को चमकाने के लिए भारत की सेनाओं का भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। Now why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे,
ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मानेंगे। दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन वी से वी डोंट वांट एस्केलेशन। इट मीन मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मानूंगा, तीसरा नहीं मानूंगा, चौथा नहीं मानूंगा। व्हाई? बिकॉज द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर्स इमेज। राहुल गांधी रौद्र रूप में थे और उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो किसी दबाव, प्रभाव या बहाव में नहीं थे। वो सीधी बात कर रहे थे, चुभने वाली। आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तो पर खच्चे उड़ाकर रख दिए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आपने जंग शुरू होते ही पाकिस्तान के सामने यह खोल कर रख दिया कि हम ये नहीं चाहते। And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35, we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. लोकसभा का कैमरा इस पर राजनाथ सिंह पर जाता है और फिर हट जाता है। रक्षा मंत्री के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। सवाल एकदम सरल था, आपने पाकिस्तान को फोन करके क्यों कहा कि हम आपके सैन्य ठिकानों को छुएंगे तक नहीं? आपने सेना के हाथ क्यों बांधे? इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। राहुल ने इसे और भी कायदे से एक्सप्लेन किया, एकदम आम बोलचाल की भाषा में, कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर असल में किया क्या है। एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की बात निशाने पर लग रही थी। उसकी चुभन सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ के चेहरों पर महसूस की जा सकती थी। टोका टाकी होने लगती है, उन्हें बताया जाने लगता है कि आपके पास समय कम है। इसका जो जवाब राहुल गांधी देते हैं वो बहुत ही मजेदार था। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। राहुल ने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, सिर्फ इस्तेमाल। उसे युद्ध में झोंककर उसके हाथ बांध दिए, क्योंकि मोदी के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव था। वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश मिले, संघर्ष किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचे। सर टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम
ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मोदी को भारतीय असेंबली में बिल्कुल नंगा करके रख दिया। ट्रंप ने 29 बार कहा कि मैंने जो है ना सीज फायर करवाया। अगर दम है मोदी के अंदर, यहाँ बैठकर वो कहे हाँ ये सब झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, अगर मोदी सच है तो वो आकर यहाँ पर कहे। राहुल गांधी ने मोदी को झूठा करार दे दिया। आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।